Hello everyone, I welcome you all in today's class, and from today onwards I'm going to start first chapter of geometry, triangles. Okay, that means from your book chapter 6, that is triangles, and it is the first chapter of geometry. Okay, now uh, what are the things that we can discuss today? See, today I'm not gonna write anything. Okay, कुछ भी नहीं लिखने वाले, no solution, nothing. Okay, इट्स सिंपली थ्योरेटिकल क्लास. जो भी इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी बेसिक आपको इससे पता होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन और काइंड ऑफ रिव्यू आई एम गोना गिव यू टुडे. ओके, सो ओके, इफ़ यू हैव योर बुक प्लीज़ कीप योर बुक्स अलोंग विथ यू. ओके, क्योंकि लिखना कुछ नहीं है लेकिन समझना बहुत कुछ है जो कि आपके चैप्टर में है. फाइन, एंड यू कैन प्रिपेयर नोट्स or you can take mark in your book, whatever be is just suitable for you, or you feel comfortable in that. You can means you can do that, but proper notes are needed because this chapter is very important. Let me tell you, you must have read the same name chapter in your previous class, that is triangles. Okay, in class 9th. But there is a basic difference between the both chapters, and the basic difference I'll tell you today. What is similarity, that is also I'll tell you today, and few new concepts which are being enhancing in this chapter, that is also we can discuss. Okay, so I'm beginning. You can see the first thing you'll get in this chapter is introduction. And in introduction, two things are given. First is congruency and next is similarity. इस पर ना जाते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करेंगे जो कि आपने पहले पढ़ चुका है इन क्लास 9th. इन क्लास 9th यू हैव रेड अबाउट कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. इस टाइप का कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा जो आपने पढ़ रखा है. वो क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, या जिनको नहीं याद है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. Congruency is the property of the polygons or of the figures or of the things that have same shape and same size. Okay, whenever we use these two words, shape and size, you should be clear about shape. Shape is just we can say in just enhancing or indicating एंगल्स. ठीक है, जब भी हम बोलते हैं इनका शेप सेम है, ठीक है, कोई चीज़ है जिनका शेप सेम है, कोई फिगर्स जिनका शेप सेम है, ओके, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स. ठीक है, क्योंकि एंगल्स आर द पैरामीटर्स विच इज गोइंग टू चेंज द शेप. अगर हम बोले, एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं शेप का, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. अगर आपको याद हो कि रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम माइन्यूट सा डिफरेंस. A parallelogram can change into rectangle if the all angles or any one angle, we can say any one angle of parallelogram is of 90 degree. That means parallelogram एक rectangle बन सकता है अगर आप parallelogram का एक एंगल 90 डिग्री कर लें. ठीक है, उस पर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता ही है कि अगर एक एंगल 90 का है तो सम ऑफ the adjacent angles is 180, another will be 90. Opposite angles are equal, बाकी सब भी कितने हो गए 90, and it becomes a rectangle. तो हमने भी देखा कि जो शेप है, शेप किसी भी फिगर का, किसी भी पॉलीगन का, किसी भी थिंग्स का, if we have something in our real life, ठीक है, तो उनको अगर हम बोल रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, सपोज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, पेजेस ऑफ योर बुक. ठीक है, अब ये पेजेस आपको दिख रहे होंगे, दीज आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव द सेम शेप, दैट मीन्स एंगल्स. देन वी से अनदर वर्ड, इट इज सेम साइज. अब यहाँ पे साइज का क्या मतलब, साइज मीन्स साइड्स. ये अपने दिमाग में बिठा दें जब भी बात हो रही है साइड्स की. साइज मीन्स साइड्स. If we say that triangles are congruent, that means the all three sides of both the triangles are equal. So this is about congruency. इसको बोलते हैं हम congruency, and in congruency we can say that the shape and size both are equal. And if shape and size are equal, that means angles and sides
बोथ आर इक्वल, जिसको कि आपने याद हो तो एक पढ़ा हुआ था करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात क्लास 9 से रिलेटेड विच इज कॉन्ग्रुएंसी। नाउ इन दिस चैप्टर इन क्लास 10 आपको एक स्टेप आगे जाना है, कुछ और पढ़ना है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज अ बिट सेम बट क्वाइट डिफरेंट ऑल्सो। फाइन, सिमिलैरिटी इज लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। यू माइट हैव सीन ट्विंस, आपने देखा होगा आपके आसपास या कहीं पर भी आपने ट्विंस देखे होंगे, है ना, किड्स विच आर ट्विंस। ठीक है, तो आप कैसे बोलते हैं उनको, बोथ आर सिमिलर, है ना, मतलब आपको देखने में सेम लग रहा है। ठीक है, उनका चेहरा सेम लग रहा है, और यू कैन से देयर एक्टिविटीज माइट बी सिमिलर, फाइन, देयर बॉडी पार्ट्स माइट बी सिमिलर। ओके, सो ये वर्ड सिमिलर का क्या मीनिंग होता है, यही आपको समझना है क्लास 10 में। Okay, your chapter 7th of class 9 is entirely based on congruency, properties of congruency, application of congruency and criterias of congruency। शायद आपको याद हो कुछ criterias हमने पढ़े हुए थे, ASA, SAS, SSS, RHS। okay, these were the criterias in class 9। so similarly उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमको सिमिलैरिटी पढ़नी है। तो सिमिलैरिटी का जैसे हमने अभी बताया, सिमिलैरिटी मीन्स इफ यू कैन से बोथ थिंग्स आर लुकिंग सिमिलर। ठीक है, देखने में हमको सिमिलर लग रहा है कि फेस सिमिलर है, ठीक है, या फिर उनकी वर्क सिमिलर है, देयर मूवमेंट्स आर सिमिलर, देयर एक्टिंग सिमिलर। ठीक है, मतलब एक जैसा हमको कुछ दिख रहा है। तो जब हम मैथ्स की बात करें, तो रियल लाइफ की बात थी, अब हम अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम सिमिलैरिटी कहाँ देखें, जैसा कि हमने कॉन्ग्रुएंसी में जो पढ़ा था कि ट्राइंगल्स या पॉलीगन्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। सिमिलरली ओवर हियर वी विल स्टडी सिमिलैरिटी इन पॉलीगन्स एंड आफ्टर ऑल इन ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी अगर हमको बोलना है तो हम कैसे बताएंगे? ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी बताने के लिए फिर वही बात आती है, शेप एंड साइज। अब क्या बोलना है, आप लिख लें, थोड़ा सा लिख लीजिए। इफ वी से दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, और पॉलीगन्स, पहले ट्राइंगल्स नहीं पॉलीगन्स की बात करते हैं, कोई भी शेप जो हमको मिला हुआ है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो शेप मस्ट बी इक्वल। ठीक है, दो कोई भी पॉलीगन जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं मैथ्स में, उनको हमें सिमिलर बताना है या उनको हम सिमिलर देख रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो वहाँ पर पहला जो प्रॉपर्टी आता है, दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द शेप शुड बी इक्वल, मतलब उनका शेप इक्वल होना चाहिए। और अभी हमने आपको बताया कि शेप का मीनिंग क्या होता है, एंगल्स, मीन्स एंगल शुड बी इक्वल। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया सिमिलैरिटी का, जो आप बता सकते हैं कि ये जो दो पॉलीगन दिख रहे हैं ये सिमिलर हैं बिकॉज दे हैव इक्वल एंगल्स और इक्वल शेप। व्हाट अबाउट साइज? आप साइज के बारे में क्या करते हैं? तो उसके पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ऑल दी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ओके, ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सपोज टू बी सिमिलर। ठीक है, अब इसमें येस और नो नहीं बता रहे हैं, होता है कि नहीं होता है, हमने बोला सपोज टू बी सिमिलर। तो आप क्या कहोगे, क्या ये सिमिलर होते हैं? कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बना लें तो क्या वो सिमिलर दिखेंगे? ओबियसली दिखेंगे। ठीक है, ऑल दी स्क्वायर्स, ठीक है, अगर आप स्क्वायर्स बनाते हैं यू कैन जस्ट डिफर देयर साइड्स, ठीक है, आप उनका साइड्स जो है वो डिफर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू विल फाउंड दैट ऑल दी स्क्वायर्स आर सिमिलर, मतलब देखने में हमको सेम लग रहा है। सो दिस इज actually the second property, that the sides, okay, corresponding sides, it is not equal but it is in the proportion। अब ये proportion वर्ड कैसे आया? proportion आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं ना, रेशियो एंड proportion 7th या 6th में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये आपको बेसिक स्टडी जो है थोड़ा सा याद रखना है। proportion मीन्स होता है when two ratios are equal, ठीक है, और वी कैन से इक्वल रेशियोज। ठीक है, अगर रेशियोज जो हमको दिए हैं वो इक्वल है, दैट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी। सिमिलैरिटी अगर हमको देखना है फिगर्स में, तो वो फिगर्स की सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं
by two things, that their shape must be equal and their size means sides must be proportional. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल जो कि हमने दिए आपको अभी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन स्क्वायर्स आर सिमिलर, एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देना चाहेंगे जिसमें कोई शेप और कोई साइज की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ना साइड्स है ना एंगल्स। सर्किल, ठीक है, सर्कल आपने देखा होगा, आप कोई भी सर्कल बना दो, किसी भी रेडियस का बना लो, वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। अब आप वहाँ नहीं बोलोगे कि वहाँ तो कोई एंगल्स ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई एंगल्स नहीं है, वहाँ पर कोई साइड्स भी नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो सिमिलर। तो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, सो एनी फिगर, ठीक है, अभी हम डायरेक्ट ट्राइंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई भी फिगर, क्योंकि अभी तो हमने सर्कल भी बोला तो सर्कल इज नॉट अ ट्राइंगल, स्क्वायर भी बोला विच इज नॉट अ ट्राइंगल, ठीक है। तो एनी ऑफ द फिगर विच हैव द सेम शेप एंड साइज, देन सेम शेप एंड साइज मीन्स हियर साइज शुड बी इन प्रपोर्शन, ठीक है, शेप मीन्स एंगल शुड बी इक्वल। ओके, तो वो कैसा हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। और ये यही सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी बुक में दी हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हो गया कंपैरिजन आपका कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंसी में आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है, जैसा जैसा हमने पुराना पढ़ा हुआ उसके कंपैरिजन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी हमने पढ़ा, तो यहाँ पर किसके कंपैरिजन में, कॉन्ग्रुएंसी का कंपैरिजन में, ओके। कॉन्ग्रुएंसी इज द प्रॉपर्टी इन विच the polygons or the triangles must have equal shape and size, okay, and similarity is the property or it is the phenomena in which the shape should be equal and size should be in proportional, okay. Then next is examples। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के एग्जाम्पल अभी बताया हमने, बुक और भी बहुत सी चीज़ें हैं आपके आसपास, ठीक है, आपके, ठीक है, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्ग्रुएंसी का, फाइन। उसके बाद सिमिलैरिटी के लिए हमने आपको बताया ट्विंस, आफ्टर दिस और भी जो भी आप चाहें अपने आसपास देख सकते हैं। देन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स होता है यूजेस, ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। तो बेस्ट है कि जब भी हमको कुछ बुक्स कॉपीज़ को, ये आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, आपने घरों में देखा होगा, आपने कर्टेन्स, है ना, घरों में आपने कर्टेन्स डाले होंगे, पर्दे डाले होंगे, तो वहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का दोनों का ध्यान रखते हैं ना। इट इज़ नॉट सो कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए समवेयर, बट इट इज़ सिमिलर, ठीक है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके सिमिलैरिटी के, और भी बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बेस्ट एग्जांपल या एक बेस्ट एप्लीकेशन जो आपको देखना है सिमिलैरिटी का, वो है इट इज़ हेल्पफुल इन मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, और हाइट्स। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है, सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड हाइट्स। अब सिमिलरली आप यहाँ भी बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड हाइट। सो ओबियसली इट इज़ देयर, ओबियसली इट इज़ देयर, क्योंकि वहाँ सिर्फ बात होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स की, लेकिन यहाँ पर हम सारे ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ओके। हाइट ऑफ द पोल वी कैन मेजर बाय दिस, ठीक है, शेडो वाले कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, मतलब जहाँ पर भी आपको देखना वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं इस क्वेश्चन में, सॉरी इस चैप्टर में, दैट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। सो important application of similarity is that similarity is being used for measuring the long distances and heights, okay। after this, ठीक है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि आपकी बुक में है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें एक ताजमहल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्चुअली आर्किटेक्ट्स, ठीक है, अगर हम बात करें जो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, अभी तो उनके पास एक डिग्री होता है दैट दे विल यूज मैथ्स टू मेक, ओके,
so and so monuments or the buildings like. बट पुराने जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने तो सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा था, फिर वो कैसे ये सब बनाते थे, ठीक है। सिमेट्री में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। सिमिलैरिटी का यूज़ सिमेट्री में बहुत है, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ भी सिमेट्री में बहुत है। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है ताजमहल का। ताजमहल जो बनाया गया है, ठीक है, उसमें आप देखना तो बहुत कुछ ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स का कॉम्बिनेशन, ओके, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज बीइंग यूज्ड, it is the best example of similarity or the best example of geometry, that how those people have used this phenomena which we are still reading, ठीक है। उन्होंने इस phenomena का कितने अच्छे से यूज़ किया हुआ है उस टाइम पर और आज भी, ठीक है, आज भी लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वी आर वॉचिंग अराउंड अस एंड इट्स गिवन, यू कैन रीड इन योर बुक, फाइन। After this, few of the activities are given in your book, and then are few theorems, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कुछ theorems, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ द होल चैप्टर। अब theorems कौन कौन सी, ठीक है। तो अगर हम जैसे क्लास 9th की बात करें तो हमने theorems पढ़ी हुई थी रिगार्डिंग क्राइटेरियाज, ठीक है, और कुछ नेम थ्योरम पड़ी हुई थी, जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम पड़ी हुई थी, ठीक है। क्राइटेरियाज जो भी हमने आपको बताए AS ट्रिपल एस एंड RHS, ये हमने पढ़े हुए थे, ठीक है। तो सिमिलरली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है 9 थ्योरम्स, ठीक है। टोटल 9 थ्योरम्स इसमें है। फर्स्ट है आपकी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो क्या है अभी हम देखते हैं वन बाय वन, सब कुछ आपको करा दी जाएंगी। उसका कन्वर्स है, देन very important Pythagoras theorem, its converse, then after this you will have one area theorem, okay, and then you will have the criterias like triple S, ट्रिपल A एंड SAS, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पूरा ये चैप्टर है, ये इसका पूरा रिव्यू हुआ। एंड यू कैन one thing that you should note down, which is the all summary of this chapter, that if we talk about similarity, not congruency, similarity of triangles, then two things we should keep in our mind. Very first thing is that two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Please note it down. Fine, this is these are two very important points to see the similarity in triangles if we are very particular about triangles only. So first thing is that their corresponding angle should be equal, okay, so that they should be equal in shape. And regarding size, their corresponding sides should be proportional means their ratio should be equal, okay. So I hope the property of similarity in triangles is clear for you, and you can go through your book, you'll find the same exact words, same exact properties, exact examples in your book, fine, and then we'll proceed towards the theorems, okay। हम पहले theorems करेंगे, उसके बाद हम exercise पर जाएंगे, because theorems are more important in this chapter. So first we will try to finish up the proofs of all the theorems, and after completing the proofs we'll go for the exercise. So that's enough for today. Wait for the next video in which we shall discuss about the theorems. And for homework, you have homework, that is exercise 6.1, okay. If you have understood the complete phenomena, the complete property of similarity, you should complete your exercise 6.1, because that I'm not going to do, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे, आपको ही करना है। 6.1 is an homework for you, don't forget to say, okay। So it's enough for today. Thank you so much.